Good evening, everyone. It's a pleasure to welcome you all. So, today we are gathered for a session that's not only technically intense, but also practically critical. That is 360-degree on search and seizure from statement to block assessment. So, if your client experiences any search at his place, then from the moment the team walks into the final block assessment order, it's a full cycle of legal, procedural, and tactical action. And as a chartered accountant, definitely we are expected to wear multiple hats. First responder, then advisor, document keeper, and sometime even therapist too. So today's session is designed demystifying the full 360-degree journey with insight not just from a practitioner's lens, but also from a courtroom and department facing perspective. And trust me, we have the best mind in the field here today with us. So let me recognize the presence on the screen, Vice Chairman of Direct Tax Committee, Vishnu Agrawal sir, Central Council member, and Speaker of today's session, Mahesh Agrawal ji, and Namrita Jhawar, who is the Secretary of this committee. So, to formally kick things off, let me introduce just in absentia CA Piyush Chhajer, sir, who is the chairman of Direct Tax Committee. Sir is definitely a senior partner in Chhajer and Doshi with 25 years of rich experience. And apart from this committee, he is serving as a vice chairman of Expert Advisory Committee. And beyond all this, I can say he's a thorough in his approach, deeply grounded, extremely helpful, and always ready to support peers and juniors alike. So, moving further, let me introduce another very incredible, talented, and truly warm professional vice chairman to this committee, Vishnu Agrawal, sir. He's also a chartered Central Council member from 25 to 29. He's serving as current term. Professionally, I think he no need to introduction, but he's expert in income tax law with over 2 decades of hands-on experience in search and survey proceedings, Benami and black money cases, ITAT and income tax litigation across the India. He is also serving as a vice chairman of the CPE committee and serving on the executive finance management committees of ICAI. Formerly, he was chairman of Western India Regional Council of ICI in 1718, and he served 3 terms at that time as a regional council member. His book, Landmark Judgment of Income Tax, is widely referred resource among professionals. So, but let me also add, apart from being a brilliant tax mind, Vishnu sir is one of the most approachable, humble, helpful professional I know. He is always reachable, listen patiently, and truly care about others' problem, whether it is a junior chartered accountant or a colleague or a student reaching out him for the guidance. So, sir, it's always a pleasure to listen your views. So, I would like to now invite you to share your words with all of us. Vishnu, sir, over to you. Thank you, ma'am. Respected Sweta Janji, Regional Council member and the past chairperson of the Vasai branch. Our today's speaker, none other than my own brother, Advocate Mahesh Agrawalji from Indore. He is expert in the search and seizure matter. So today we have, yes, 4 5 days before, we have thought that so many searches are going on across the country. So whom do we invite for benefit of our all the chartered accountant? So we thought about the Mahesh Agrawalji, and immediately he accepted our invitation. So thank you, Mahesh bhai, for accept our invitation for for benefit of the all the chartered accountant across the country. Friends, in our direct tax committee, we are taking so many steps for the benefit of our all the members. Before the select committee, because new finance bill 2025, when we introduce in the parliament in the month of the Feb, immediately we have work on the finance bill 2025, and we have given
close by close suggestion to the select committee, and select committee has accepted our more than 100 suggestion. First time ever India select committee has suggestion more than 100 suggestion of the direct tax committee for the benefit of all the stakeholders. Friends, we have also came out with the revised guidance note of the section 44 AB, our tax audit, for the benefit of our all the members. Last only few days before, only our honorable president has released the guidance note on the 44 AB. And again, we are coming out with the checklist for all the ITR forms from 1 to 7. ITR 1 and ITR 4 we will release in the next week, and rest of the forms again we will release in within the 10 to 15 days. Friends, at the ICI level, we are taking so much hard steps for benefit of our all the members. We have given so many representation to the CBDT or in the matter of the TDS and the charitable trust and other matter also, for benefit of our all the members. Friends, most importantly, we have changes. Only one major changes we have done. Our council has passed before any auditor partner can do the sign on behalf of the another partner of the tax audit report from 1/4/2026 from the next year. For example, there are 4 partners in the firm. Then this year, this is the provision that any one partner can sign the audit report on behalf of the another partner. One partner can sign the audit report, all 240 audit report. If there are 4 auditors, 4 partners in the firm, friends, from the next year, only individual partner can sign on the in the capacity of the partner. No partner can sign on behalf of any another partner. So this is the major changes this we have done in this year for the tax audit purpose. Friends, for the our tax audit, our sister institute also approached to the select committee for definition of the 288 of our chartered accountant to include the company secretary and ICWA for the tax auditor as a tax auditor, but the select committee has have no change in the definition of the 288 of the tax the accountant. So our president also has taken the very good approach and meet all the select committee members for this particular cause. Friends, with the benefit of our all the members, we are doing every Thursday very big webinar, and we are calling the best to best faculty from across the country. Friends, you take the maximum benefit of this particular webinar. Now I will take not much of the time and request the Swetaji to introduce the Mahesh Agarwalji for benefit of our all the members. Thank you, friends. Thank you. Thank you so much, Vishnu sir, for setting up the tone and letting us know the highlight of the committee. And tax audit limit changes is definitely a welcome step. So now I'll directly will introduce our speaker, Advocate Mahesh Agarwalji. We are definitely privileged to have with us him, because this name that commands respect across tribunals and professional circles. With over 4 decades in tax consultancy and legal advocacy, he is the founder of Mahesh Agarwal and Company based in Indore, and he has held numerous esteemed positions, including member of the Regional Direct Tax Advisory Committee, CBDT, President, Vice President, Secretary, and Joint Secretary of the Tax Practitioner Association Indore, nominated Director at MPSE Securities Limited by SEBI, and a Public Representative Director thereafter. Respected member of several bar association, including High Court, Tribunal, and District Bar. He is a regular speaker at our ICI and TPA events, and has conducted powerful session on search and seizure, block assessment, and cash transaction restrictions. So of the dice, I can say he also actively involved in the community and cultural services, including as a trustee of Agrasen Seva Sansthan and patron of Range Mehfil Musical Organization. So we look forward to learning from your vast experience. So over to you. Thank you so much for joining us today. Over to you. First of all, thank you, Shweta ji,
for your kind words, and I am very thankful to Direct Tax Committee ICI, Piyush ji, Vishnu ji, my younger brother, who has given me the wonderful opportunity to share my some views and thoughts on my very favorite subject. Today's topic 360-degree on search and seizure from statement to block assessment. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से जहां भी मैं सर्च और सीजर पे बोलने जाता हूं तो मैं यही बात बोलता हूं कि पीपुल आर नॉट पेइंग इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी ग्रोथ का वैल्यूएशन कर लीजिए और वैल्यूएशन करके आपने पूरे लाइफ स्पान में क्या टैक्स भरा है उसको जोड़ लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी ग्रोथ के हिसाब से कितना टैक्स भर रहे हैं। तो पब्लिक भी मुझे बोलती है कि वी आर पेइंग गुड टैक्सेस, हेवी टैक्सेस, बट इन टर्न वी आर नॉट गेटिंग लेजिटिमेट फैसिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। लगता है बात तो सही है, पर अब इन दोनों बातों के बीच में इनकम टैक्स का अपना काम है और उनको जो स्पेशल पावर दिए हुए हैं 131, 132 और 133A में, तो उन पावर्स का यूज वो रैम्पेंट टैक्स इवेजन और टू डिटेक्ट अनडिस्क्लोज इनकम एंड कलेक्ट एविडेंसेस इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट इनकम असेसमेंट्स, इन पावर का वो यूज करते हैं। और आज सर्च और सीजर के टॉपिक में मैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस के बारे में बात करना चाहूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग करीब 18 DGIT इन्वेस्टिगेशन है पूरे इंडिया में, और उनका एक अपना सेटअप रहता है स्टेट वाइज या प्लेस वाइज। जैसे बॉम्बे में एक डीजी हैं या पूना के एक डीजी हैं, तो महाराष्ट्र में 2 डीजी हो गए। और इनके यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन से इनकम टैक्स की सर्चे प्रिपेयर करना होती है और उनको आइडेंटिफाई करना होता है, तो उनके सर्टन पैरामीटर्स रहते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग कंप्लेंट बेसिस पे, उसमें कई उनको टीपीज आती हैं जिसको टैक्स इवेजन पिटीशन बोलते हैं, वो प्रिंसिपल डीआईटी इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है, चाहे वो डीडीआईटी के पास आए या एडिशनल डीआईटी के पास आए। और प्रिंसिपल डीआईटी विल टेक ए डिसीजन के ही हैज टू डू ओपन इंक्वायरी और इट विल बी यूज्ड in making search and seizure actions। तो यदि ओपन इंक्वायरी होती है तो वो फील्ड में टीपीज वापस जाने के बाद उसकी वहाँ पे डीडीआईटी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजते हैं और उसी के बेसिस पे आगे उसमें डिसीजन होता है। एक और सिस्टम है, ये मेट्रोज में ज्यादा देखने में आता है कि प्रोफेशनल इन्फॉर्मर और इन्फॉर्मर्स होते हैं, और वो उनका काम ही यही होता है कि टैक्स इवेडर्स और जिनका टैक्स इवेजन के एविडेंसेस कलेक्ट करके वो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं और एफिडेविट देके वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। उस पर डिपार्टमेंट उनको रिवार्ड भी देता है, और वो रिवार्ड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 10 lakhs to 5 करोड़ है आजकल वो रिवार्ड की जो अमाउंट है, और वो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बेनामी एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट में है। तो दिस इज अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ इंक्वायरी ये लोग करते हैं, जो फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट होती है, FIU बोलते हैं उसको, एयर इंफॉर्मेशन इनसाइड पोर्टल से इनको इंफॉर्मेशन आती है। अदर डिपार्टमेंट GST, CGST, CBI एंड PMLA, ये अदर डिपार्टमेंट से इनको इंफॉर्मेशन आती है, उसको भी बेसिस बना के ये लोग अपना सर्चेस वगैरह के केसेस तैयार करते हैं। Nowadays we are watching that many searches have been happening in the matter of bogus purchases, like in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. In recent 2-3 months back, they have conducted searches in bogus cotton. This is a cotton area.
तो बोगस कॉटन बिल प्रोवाइडर जो बिल प्रोवाइड करते हैं और जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको दोनों को एक ग्रुप बना के ये लोग कवर करते हैं और उसमें अच्छा खासा इनको अभी एविडेंस मिला है और आगे जाके इनको ऑब्वियसली टैक्स भी अच्छा मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जबलपुर में और कई प्लेसेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके जीएसटी डिपार्टमेंट सर्च कर रहा था, करीब 40 सर्चेस जबलपुर में उन्होंने किया है। तो ऑटोमेटिकली दोज इंफॉर्मेशन विल पास टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द फर्दर सब्सिक्वेंट रिपरकेशन विल बी देयर। फिर इन रिसेंट टाइम यू आर ऑल अवेयर दैट देयर वर सर्चेस at the consultant, tax advocates and chartered accountants in respect of political donations, और वो 14 जुलाई को करीब 205 प्लेसेस के ऊपर पूरे इंडिया में उन्होंने डिपार्टमेंट ने सर्च की है, जो सीबीडीटी से ही मॉनिटर हो रहा था। पहले उनका डाटा इकट्ठा कर लिया गया कि किसने बोगस पॉलिटिकल डोनेशन और बोगस बिल्स क्लेम करके फॉल्स रिफंड लिए हैं, बोगस रिफंड लिए हैं। उनके यहाँ पे सर्चेस की गई, सर्वे किया गया, जिनके कंसल्टेंट के घर ऑफिस है कि उनके यहाँ सर्च की गई, जिनके ऑफिस अलग है किसी के यहाँ सर्वे किया गया। पर नाउ दे हैव टू फेस म्यूजिक ऑफ द ऑल search provision and all these consequences of block assessment। अब उसमें यही बताया जा रहा है कि I have occasion to deal 2-3 consultants matter, तो वहां से इन्वेस्टिगेशन विंग से यही कहा जा रहा है कि भाई 139(8)A में जितने आप रिटर्न रिवाइज कर देंगे उतना आपको जल्दी आपको फायदा मिलेगा। ये तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस की बात हो गई। अब 132(1) में ऑब्वियसली जब ये पावर यूज किए जाते हैं तो डेफिनेटली दीज आर द ड्रकोनियन पावर, और always we can say it is a violation of right to privacy and against the fundamental rights of the public people given in article 19, 20, 21। और जब इन पावर्स का यूज होता है तो इस पे सर्टन चेक और बैलेंसेस रखा जाना चाहिए। इन चेक और बैलेंसेस की जब अपन बात करें तो इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट चेक है, सीबीडीटी और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ सर्कुलर्स इशू करती है, सर्कुलर्स के थ्रू वो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देती है कि किस टाइप के केसेस में सर्च होना चाहिए, किस टाइप के केसेस को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। जैसे प्री सर्च इंक्वायरी इंस्ट्रक्शन नंबर 7 ऑफ 2003, इसमें क्लियरली फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सर्च शुड नॉट बी कैरिड आउट ओनली इन केसेस वेयर देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस टू इंडिकेट substantial unaccounted income / asset in relation to tax normally paid by assessor where the expected concealment is more than 1 crore। So it is clearly clarified that cases where concealment is expected more than 1 crore, that should be searched only, not less than that this amount। And in third, professional taxpayer के लिए, the taxpayer who are professional of excellence should not be searched without there being compelling evidence and confirmation of substantial tax evasion। उन्होंने कहा कि जो भी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लोग हैं उनके मैटर में जब तक कोई एविडेंसेस या सब्सटेंशियल टैक्स इवेजन नहीं हो जब तक उनको सर्च नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम सीबीडीटी अपने इंस्ट्रक्शंस और ये इशू करती रहती है। इंटरनल और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन तो इनके डे इन डे आउट चलता ही रहता है। सेकंड चेक में जब ये केसेस अपना बनाते हैं और केसेस को जब सर्च के लिए तैयार करते हैं तो सेकंड चेक में इनकी जो अप्रूवल होती है केसेस की, उसमें प्रिंस डीडीआईटी केस को जैसे प्रिपेयर करता है अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड और सेटिस्फेक्शन नोट उसको लिखता है, फिर एडिशनल डीआईटी के पास जाता है वही नोट। एडिशनल डीआईटी
अपना उस पे एक काउंटर नोट लिखता है, फिर ये लोग प्रिंसिपल डीआईटी के पास जाते हैं, फाइनली वो केस को अप्रूव करता है। पर जब सर्च होती है फाइनली डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल से ही सर्च की जाती है। तो ये सेकंड चेक में इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे 4 अथॉरिटी का एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व है, और उनका एक अपना जो कहने का मतलब ये है कि उनने जो अब जिस कैपेसिटी में साइन किया है, दे आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स if there will be any litigation in future. Third check, the section is 132(1) is a very small section, पर उसका धमाल बहुत है। Section starts where the principal director or principal director investigation in consequence of information in possession has reason to believe. उन्होंने 2 बात यहाँ कही है कि इंफॉर्मेशन इन पोजेशन होना चाहिए और रीजन टू बिलीव होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में लाइव नेक्सस होना चाहिए। फिर उन्होंने एबीसी 3 क्लॉज दिए हैं, और ये तीनों क्लॉज की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इन तीनों कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। जैसे 132(1) में है नॉन कंप्लायंस टू समन। एक केस में एक आरटीओ ऑफिसर थे, और आरटीओ ऑफिसर के बगल में एक स्टील मर्चेंट था। आरटीओ उस जमाने में स्टेट विजिलेंस की बहुत इनकम टैक्स सर्चेस होती थी, तो आरटीओ ऑफिसर साहब ने क्या किया, अपना पूरा बॉक्स में सामान अमान कैश ज्वेलरी और जो भी उनका अनअकाउंटेड फला ठिकाना जो भी मटेरियल था वो स्टील वाले जो ट्रेडर है उसके यहाँ रख दिया, जो जिसका घर उनके बगल में था। अब वो क्या हुआ कि आरटीओ ऑफिसर साहब क्या तो स्टेट विजिलेंस का सर्च नहीं हुआ, पर जो स्टील बिजनेस ट्रेडर है उसका बोगस स्टील बिलों के चक्कर में उसके यहाँ सर्च हो गया, और वो जो बॉक्स है आरटीओ ऑफिसर साहब का वहां मिल गया। उनको एक समन दिया गया 131(1) में कि भाई ये आपका बॉक्स वहां मिला है, और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है स्टील ट्रेडर ने कि भाई ये किसका बॉक्स है, ये आप बताइए इसके बारे में, नहीं तो 132(4) का प्रिजम्पशन आप पे अप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, ये इनने रखा था, बोले हमको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। तो जब उनको समन दिया गया तो उन्होंने उसका नॉन कंप्लायंस किया। डिपार्टमेंट ने 1 महीना 2 महीना इंतजार किया। 2 महीने के बाद डिपार्टमेंट ने इसी ग्राउंड के और इसी क्लॉज के ऊपर उनको सर्च किया, और उसमें एक अपना नया उनका पिटारा या पिंडोरा बॉक्स जो भी है वो खोला। तो दिस इज ए नॉन कंप्लायंस ऑफ 132(1)A। सेकंड एग्जांपल प्रैक्टिकली अपन समझें तो एक असेसी था जिसका मैंने सर्च हैंडल किया था। उसका सर्च के पहले उसका एक अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट का उनसे झगड़ा हुआ। वो अकाउंटेंट ने क्या किया कि उसकी सारी नंबर 2 की बुक्स, जो भी नंबर 2 के लूज पेपर थे और सारा मटेरियल विथ एफिडेविट ले जाके वहां पे जो भी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था डीडीआईटी एडिशनल डीआईटी उसको दे आया जाके। उन्होंने कहा साहब ये फला फला असेसी है, उनका ये नाम पता है, उनसे रिलेटेड ये पेपर है, और ये उनके अनअकाउंटेड बुक्स ऑफ अकाउंट और ये पेपर है। तो इस पोजीशन में 132(1) भी ये बोलता है कि यदि उसको वो नोटिस देगा डीडीआईटी 131(1) का समन भी देगा या कोई नोटिस भी देगा, तो उस केस में 100% वो असेसी कभी भी ये बताने नहीं आएगा कि मेरी अनअकाउंटेड या अनडिस्क्लोज इनकम है। तो इन सच सिचुएशन दिस जो क्लॉज है इसके बेसिस के ऊपर भी सर्च किया जा सकता है। दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। द थर्ड वन 132(1)C, ओवर ए पीरियड मैंने अभी गूगल पे सर्च किया और ये देखा कि भाई हाईएस्ट कैश का सीजर अभी पिछले 2-3 सालों में हिंदुस्तान में कहाँ हुआ है। तो आप लोगों को जानते होंगे कि उड़ीसा डिस्टिलरी में एक सर्च हुई थी अभी 2 साल पहले, तो वहां 300 करोड़ सीज किए। उसके बाद एक रोड कंस्ट्रक्शन फर्म थी तमिलनाडु में, वहां 163 करोड़ सीज किए और 100 किलो गोल्ड सीज किया गया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक आपने कोविड के टाइम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सुना होगा जिसने कई लोगों की जान बचाई।
वो हैथ्रो फार्मा थी हैदराबाद की, उसके यहाँ अपने आप ही सर्च हुई और उस सर्च में 142.87 करोड़ का कैश सीज हुआ था, जो उस टाइम का हाईएस्ट कैश सीजर था। बाद में ये दो फिगर और आ गए। तो इन टाइप के केसेस में ये जो 132(1)(c है, ये वाला क्लॉज अप्लाई होता है। तो अथॉरिटीज ये जो सेक्शन में 132(1)(a)(b)(c), यदि इन तीनों में से एक या दो या तीन क्लॉज जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक देयर कैन नॉट बी ए लीगल या वैलिड सर्च। अब इसको लेके टाइम टू टाइम जब भी सर्चेस होती हैं तो इसके अगेंस्ट में लोग आर्टिकल 226 में अपना रिट पिटिशंस फाइल करते हैं और इनको लेके कई हिस्टोरिकल जजमेंट आए हैं। और अभी जो लेटेस्ट जजमेंट है 2022 का, मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा। तो उसमें तो मेरे हिसाब से दैट इज अ प्रो डिपार्टमेंटल जजमेंट। तो आई विल स्टार्ट विद द ITO वर्सेस सेड ब्रदर 74 ITR 836। इसमें फैक्ट्स ये थे कि वैलिडिटी ऑफ ए सर्च ऑपरेशन वाज चैलेंज्ड, questioning whether the income tax authorities had sufficient reason to believe that undisclosed income was involved. इसमें रूलिंग आया, the Supreme Court upheld that search, stating that the belief formed by the income tax authority was reasonable and based on information, even though the sufficiency of the information could not be questioned in court. Principal laid down हुआ इसमें, courts cannot go into the adequacy of the information, they can only check whether the belief was formed based on relevant material. तो कोर्ट का, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ना तो हम इसकी एडिक्वेसी चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की, और ना इसकी इंफॉर्मेशन की सफिशिएंसी क्वेश्चन हो सकती है। नेक्स्ट, पूरनमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन 93 ITR 505। ये भी काफी चर्चित केस है, काफी इसके बारे में बात होती है। इसके फैक्ट्स थे, इन दिस केस द पिटिशनर चैलेंज द सर्च एंड सीजर ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज ए नो वैलिड रीजन टू बिलीव दैट अनडिस्क्लोज्ड इनकम एग्जिस्टेड। रूलिंग आया इसमें, द सुप्रीम कोर्ट upheld that search and seizure ruling that the authority must have reason to believe that income has been concealed. However, the court also emphasized that the belief must be based on tangible material. There must be some tangible material. Principle, the reason to believe of the tax authority must be based on real and credible information, and the court will not interfere if the belief is genuine and founded on material. Third, CIT versus Wind Metal Corporation 224 ITR 614. Search was challenged on the ground that the reason to believe for conducting the search was not properly recorded. इसमें रूलिंग आया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द सफिशिएंसी ऑफ द रीजन टू बिलीव एज लॉन्ग एज बिलीफ वाज formed in good faith based on relevant information. Principal, good faith and relevance of the information is key. Sufficiency of the information cannot be questioned. Everywhere you will see that Honorable Apex Court is continuously and keeping on saying that sufficiency and adequacy cannot be questioned. Next, Madhu Gupta. In case of Madhu Gupta, the search was quashed, and when information must not be based on surmises and conjecture, it was held in the Madhu Gupta case. One very famous case, Dr. Nandalal Tehlani, it was held, Meyer high earning or lifestyle do not constitute reasonable belief of undisclosed income. Unverified complaints do not have any weight. The very important judgment SR Botley and Company, एक MR ग्रुप पे दिल्ली इन्वेस्टिगेशन विंग ने सर्च किया, वहां पे SR Botley and कंपनी के दो
चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने काम कर रहे थे और उनने लैपटॉप सीज कर लिए। लैपटॉप सीज करने के बाद उनको समन किया गया कि आप इसका कोड दीजिए और हमको इसका पूरा डाटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने एमआर ग्रुप को सर्च किया है और एमआर ग्रुप का डाटा हमने आपको दे चुके हैं, बाकी जो क्लाइंट्स है उनके डाटा को आप टच नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा ब्यूटीफुल डिसीजन है दिल्ली हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि लैपटॉप आप लौटाइए और ये समन को उन्होंने सेटिसाइड कर दिया और यू कैन नॉट टच द डाटा ऑफ द अदर assessee. In 2019, one search has been quashed by the Gujarat High Court in case of Lalji Bhai Kanji Bhai Mandilia. In this case, what happened? 10 crore of loan was given to a one company against the some mortgage of the property, and this loan has been repaid. And on the basis of this loan entry, the investigation wing has been searched the assessee and he filed a writ petition against the department in Gujarat High Court. And Gujarat High Court had decided the matter in favor of assessee by saying that the B and clause 132(1)(b) and 132(1)(c) clause are not complied while conducting the search. Later on, the department has gone into the appeal and filed appeal in Supreme Court. And in 2022, Supreme Court has decided this case against the assessee and in favor of department. And the learned judges has told that the formation of opinion and reason to be recorded is an administrative action. This is in administrative nature basically. And they have also laid down the ratio that opinion must be honest and bona fide. Authority must have information in its possession on the basis of which a reasonable belief, and court shall not examine the sufficiency or adequacy thereof. And they also pass a remark that such reason to believe is recorded by income tax authorities are not required to be disclosed to any person or any authority or the tribunal. In Finance Act 2017 and retrospective effect from 1/4/1962, they inserted one explanation that the satisfaction note and search warrant cannot be shown to the income tax appellate tribunal. So they have also mentioned this thing in this order. So in my view, if satisfaction note is in the nature of administrative, then what should I more tell you about this? And this judgment is seems to be in favor of department, not in favor of the assessee. So this is the land of law that we have to follow it actually. So these are the three checks through which the department has put a control on the search and seizure action. Now, I want to tell you on this slide that jurisdiction of investigation wing is, I believe, is the entire India.
some of the cases I see that people are staying in Bhopal, Indore, and they are filing their return in Delhi, Mumbai. So in my view, I have seen many searches that sometime Delhi investigation being searched the Bhopal assessee, Mumbai investigation being searched the Indore assessee, sometime Indore investigation being search to that assessee also. So in my advice, we should file our return where our principal place of business and the residential address of the director. Otherwise, we will come under the jurisdiction of two Director General investigation. This is my advice. Actually, I have seen many cases. They are filing return Kolkata, Delhi, Mumbai, and residing in the different places. So they have to face consequences of rigors of the section 131, 132(1). The next, now search start, and the power of the authorized officer have been top, that entry of the authorized officer into premises always without a prior notice, and you all aware that it includes a surprise element. No time given to conceal, destroy or alter evidence, क्योंकि यदि उसको टाइम मिलेगा तो वो अपना कैश, ज्वेलरी, लूज पेपर, मोबाइल, चैट, डाटा वगैरह इधर उधर कर सकता है। तो जब भी सर्च होती है क्लाइंट्स के यहाँ, जब वो बाद में आके बताते हैं कि साहब वो एकदम दीवार फांद के अंदर कूद गए, और आप लोगों ने भी रेड 1 और रेड 2 मूवी देखी होगी, तो उसमें तो उन्होंने बताई है कि भाई वो लोग इंटर कैसे होते हैं। जब ऑथोराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो देन इनकम टैक्स ऑफिसर घर में, फैक्ट्री में, दुकान में जब भी वो सर्च करने के लिए एंट्री करता है, तो सबसे पहले वो अपना वारंट दिखाता है असेसी को, और उस वारंट के ऊपर एक काउंटर सिग्नेचर करवाता है, और वो वारंट की कॉपी कभी नहीं दी जाती है, और उस वारंट में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि जब आप पंचनामा देखते हैं तो उसमें पहली लाइन में लिखा रहता है वारंट इन केस ऑफ, तो वहीं पे क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि पंचनामा जो होता है एक सीआरपीसी से बारो करा हुआ प्रोविजन है, और पंचनामे में जो आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, प्रोसीडिंग ऑफ सर्च का रिकॉर्ड रहता है पूरा। तो सबसे पहले वो वारंट उनको दिखाता है, फिर पूरे घर में सर्च करता है, सब लोगों को इकट्ठा करता है, अलमारीज वगैरह चेक करवाता है अपनी टीम से, साथ में पुलिस का असिस्टेंस वो लेता है, दूसरे पर्सन की भी, वो जो कंप्यूटर एक्सपर्ट और जो डाटा क्लोनिंग के एक्सपर्ट होते हैं, जो डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो 1423 से एनी अदर एजेंसी और एनी अदर पर्सन का भी इन लोगों ने क्लॉज इंसर्ट कर दिया सेक्शन 132(1) में। इनकी सबकी वो इन्वेंट्री बनाता है, इन्वेंट्री बना के फिर यदि कोई अलमारी, कोई कमरे में यदि लॉक लगा हुआ है और वहां पे असेसी ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उनको वो ब्रेक भी कर सकता है, या एक रिस्ट्रेन ऑर्डर भी उसके ऊपर लगा सकता है। कल से कोई वहां पे बाहर गया हुआ हो बंदा उसका, या चाबी नहीं हो, तो या ब्रेक कर सकता है या रिस्ट्रेन ऑर्डर लगा सकता है। और सर्च स्टार्ट करने के पहले सबसे पहला काम तो वो असेसी को बोलता है कि आप 2 रिस्पेक्टेबल विटनेसेस को बुलवा लीजिए। रिस्पेक्टेबल विटनेस हंड्रेड एंड 12 रूल, सब रूल 6 में बड़ा क्लियरली मेंशन है
where building or place to be searched call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situated. Nowadays ये देखने में आता है कि कई बार कई केसेस में हमने देखा है कि जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने बैंकिंग ऑफिशियल, पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल, इंश्योरेंस के ऑफिशियल्स को अपने साथ ही ले जाते हैं और उनको इंसिस्ट करते हैं असेसी को कि ये आपके जो सर्च प्रोसीडिंग होगी उसमें विटनेस रहेंगे, लाइक अदर एजेंसी सीबीआई एंड पीएमएलए. और सम टाइम एंड मेनी टाइम्स वी हैव सीन के ये लोग अपने जो गाड़ियों के ड्राइवर्स होते हैं, प्यून्स होते हैं या चाय वाला, ठेले वाला, किसी को भी वो कोशिश करते हैं कि वो वहां पे विटनेस बन जाए और उसके सामने सारी प्रोसीडिंग हो. यहाँ पे मेरा ये कहना है कि सब रूल 112 रूल में क्लियरली उन्होंने वर्डिंग्स लिखे हुए हैं कि टू आर मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी in which the building or place to be searched. अब इंडिपेंडेंट विटनेस की जो बात आती है वो सेक्शन 100 सब सेक्शन 4 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आती है कि दे रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस. फिर अपने यहाँ पे जो सेक्शन है सेक्शन 132(13) में इनकम टैक्स स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी शैल अप्लाई एज फार एज पॉसिबल. अब जो विटनेस ऐसा होना चाहिए कि विटनेस शुड अंडरस्टैंड द सर्च प्रोसीडिंग्स, नेचर एंड ऑब्जेक्ट, दे शुड बी एबल टू रीड एंड राइट. अब जो विटनेस ड्राइवर होगा, प्यून होगा, चाय वाला होगा, उसके सामने आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, उसके सामने आप पूरी प्रोसीडिंग करेंगे, तो वो कितना ही उसको समझेगा उस प्रोसीडिंग को. और उस विटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है फिर इन टाइप के ड्रैकोनियन पावर को यूज करते समय, सर्च और सीजर के एक्शन के समय. एक सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक साइटेशन भी मैंने दिया है. Sundar Singh versus State of UP has held that since the rickshaw driver acting as a witness weren't from the same locality, though the search action was not invalidated, but this irregularity has resulted into reduction in weightage of evidences. Sometime it happened in the searches के employees के यहाँ से या प्यून के यहाँ से ये लोग अपना पेन ड्राइव या कई लूज पेपर अपना सीज करते हैं और फिर वहां का उन लोगों का वारंट नहीं लाके उसको ऑफिस में ही लाके उनका सीजर बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई ये जो असेसी जिसको सर्च किया इसके यहाँ मिला है. तो वहां से लेके आगे तक जो विटनेस की अपनी एक जो रोल होता है, विटनेस का जो अपना काम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए. इट इज नॉट ए सिंपल जॉब कि भाई ठीक है ये आपने एक रजिस्ट्री कराई है, कराया, उसके सामने आपने साइन किया और काम आपका खत्म हो गया. तो इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल विटनेस होना चाहिए. ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो विटनेस है वो रिस्पेक्टेबल हो. दो ऑल द पीपुल आर रिस्पेक्टेबल अनलेस अनटिल के उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं हो. पर इट डजंट मीन कि उनको कोई प्रोसीडिंग ही समझ में नहीं आ रही है, उनको ऑब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है हमारे सामने. तो देयर मस्ट बी सम रिस्पेक्टेबल एंड इंडिपेंडेंट विटनेस. और वी हैव टू एजुकेट अवर असेसी in such a situation. We should insist for the good and the respectable independent witnesses. In case in future if we have to retract something, if we have to give some affidavits, then in that situation it is very helpful for us that क्योंकि आप जानते ही हैं कि कई बार डिपार्टमेंट किस तरीके से स्टेटमेंट लेता है, किस तरीके से अपनी बातें मनवाता है. नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को उनको अलाउ करना है. पूजा जो असेसी करता है उसके लिए उनको अलाउ करना है.
उनको थ्रेटन नहीं करना है, उनको अब्यूज नहीं करना है, टी कॉफी मील्स अलाउ करना है, मेडिकल फैसिलिटी इफ रिक्वायर्ड तो मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराना है, उनके साथ मैन हैंडलिंग नहीं कर सकते, उनको आप बहुत थ्रेटन नहीं कर सकते। तो वो डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको वो चार्टर फॉलो करना है। और जो राइट्स ऑफ द सर्च पर्सन है, एक तो विटनेस वाली बात मैंने आपको बता दी। फिर ही कैन सी ऑथराइजेशन आल्सो, वो अपना जो ऑथराइजेशन है, सर्च वारंट है, वो वेरीफाई कर सकता है, उसमें अपना नाम वेरीफाई कर सकता है। हो सकता है कि भाई दूसरे महेश अग्रवाल के यहाँ पे सर्च स्टार्ट हो गई हो। नेक्स्ट, सर्च स्टार्ट करने के बाद, ये सारा काम होने के बाद, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, he will record a preliminary statement. That preliminary statement, though it is recorded on oath, but in section 132(1)(a, उसमें इनिशियली वो सारी चीजें पूछ लेता है, जिससे आगे फाइनल स्टेटमेंट में जो असेसी है वो डेविएट नहीं हो। असेसी को बाइंड करने के लिए वो सारी बातें पूछ लेता है, और उसमें किस तरह के जनरली क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि भाई आपके पास कितनी बिजनेस के प्लेसेस हैं, कितने दुकान, गोडाउन, फैक्ट्रीज हैं, आपके पास कितनी कैश है, आपके पास किसी दूसरे की कैश तो नहीं रखी हुई है, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, आपके पास कितने लॉकर्स हैं, आपके पास और किसी की ज्वेलरी तो नहीं रखी हुई है, आपका कहीं कैश कहीं और तो नहीं रखा हुआ है, आपकी ज्वेलरी और कहीं तो नहीं रखी हुई है, आपके यहाँ पिछले 6-7 सालों में कोई मैरिज या कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें आपने कितना खर्चा किया है। और थर्ड पार्टी से रिलेटेड वो पूछ लेते हैं कि भाई आपके यहाँ पे और किसी का कोई सामान या पेपर तो नहीं रखा हुआ है, और आप इनकम टैक्स असेसी हैं, सो एंड सो। ये तो दीज आर ऑल क्वेश्चन दे विल आस्क। एंड फैमिली मेंबर्स के बारे में वो बात कर लेते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछ लेते हैं। और जो वहां पे सर्च में इनग्रेस करने के बाद प्रीमाइसेस में जितने भी आदमी रहते हैं, वो अथोराइज्ड ऑफिसर के समझ लीजिए कंट्रोल में होते हैं। उसकी परमिशन के बिगर वो ना बाहर जा सकते हैं, ना उसकी परमिशन के बिगर वहां कोई अंदर आ सकता है। और अथोराइज्ड ऑफिसर एक प्रकार से मानिए तो वहां का वो मालिक हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए। और इसमें यदि कोई उससे बिना पूछे बाहर जाएगा, बिना पूछे अंदर आएगा, इट इज लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। वन 32(1) है, वन प्रोविजन इज देयर। इसको भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अपन समझते हैं कि मिस्टर ए के यहाँ पे सर्च हुई, और सर्च हुई तो भाई साहब बाहर घूमने गए हुए थे, और जैसे उनको मालूम पड़ा कि घर पे सर्च हो गई है, तो उन्होंने अपनी लॉकर वॉकर की चाबी कहीं रखी हुई होगी, तो लॉकर वगैरह की चाबी लेके और लॉकर को ऑपरेट कर लिया। लॉकर को ऑपरेट करके उसमें से कैश ज्वेलरी निकाल लिया, और कैश ज्वेलरी निकाल के वो एक अपने फ्रेंड थे, बड़े अच्छे उनके जो क्लोज फ्रेंड थे, वो ब्यूटी पार्लर भी चलाते थे, उनकी वाइफ, और अच्छे प्रतिष्ठित आदमी थे, उनका रखा है जाके। किसी न किसी तरीके से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पुलिस के थ्रू या जो ब्यूटी पार्लर के पड़ोसी हैं उनके थ्रू वो टिप ऑफ हो गया मैटर कि भाई यहाँ पे कोई बड़ी हेरा फेरी हुई है और कोई सामान लेके आए हैं बड़ा भारी कैश और ज्वेलरी का। तो उसमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। तो ऐसे केसेस में जब सर्च स्टार्ट हो जाती है और अथोराइज ऑफिसर एंट्री करने के बाद उसको कहीं से ये मालूम पड़ता है कि इस आदमी से रिलेटेड
कैश, ज्वेलरी, बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर वैल्यूएबल चीज या ऐसी कोई चीज जो सर्च से रिलेटेड है कहीं पे रखी हुई है, तो उसमें वो 132(1) सेक्शन अप्लाई होता है। और सेम 132(1) सब सेक्शन 1 के एबीसी क्लॉज में उसका सर्च वारंट बनता है और उसके यहाँ पे सर्च होती है। तो वो ब्यूटी पार्लर वालों के घर पे और उसके दुकान पे सर्च हुई, उनका सामान तो अपना निकला ही निकला मिस्टर ए का, पर जो बी ब्यूटी पार्लर वाले थे उनका भी अपना कैश ज्वेलरी उसमें सीज हो गया। तो ऐसे केसेस में 132(1) का अपना प्रोविजन को यूज करते हैं बेसिकली। प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट में एक केस में एक बार ऐसा हुआ कि उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ कितना कैश है, तो एक एक्चुअल सर्च की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा साहब 10-15 लाख रुपए होगा। फिर बाद में जब एक्सटेंसिव सर्च हुई उनके यहाँ पे, तो उनकी कैविटी में कैश मिला करीब 3.5 करोड़ रुपया। तो उनको फिर हालो हाली डीआईटी इन्वेस्टिगेशन और एडिशनल डीआईटी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डीआईटी इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसिक्यूशन का नोटिस दे दिया, जिसको उनको बाद में जवाब वगैरह देना पड़ा उसके बारे में। तो प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट में तो जो फैक्चुअली जो सही है वही हमको बताना चाहिए, अदरवाइज इट इज लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। 132(2) में सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन, ये 1/4/2023 से आया है। इसमें आजकल एक्सपर्ट टीम ये लोग साथ ही लेके जाते हैं असेसी के प्रीमाइसेस पे, इसको पहले ही ये लोग शायद बुला लेते हैं जो भी करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया कई लोग आजकल ये सॉफ्टवेयर और डाटा एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, और इनके पास नए नए सॉफ्टवेयर और नई नई मशीन्स आ गई हैं ऐसी, जिससे जो डिलीटेड डाटा है ना, लोग बोलते हैं कि हमने मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया, वो कभी डाटा डिलीट नहीं होता है, या कंप्यूटर से भी डाटा डिलीट नहीं होता है, वो उसमें डाटा को अपना क्लोन कर लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके, और फिर बाद में हम लोगों ने कई सर्चेस में बड़े फेटल डाटा देखे हैं। अब आजकल लिखने पढ़ने का तो काम कम हो ही गया है, तो आजकल सारी चीज या तो व्हाट्सएप चैट या ईमेल या क्लाउड वगैरह पे काफी डाटा मिलता है। तो 132(2) सब सेक्शन में ये सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन 1/4/2023 से इनको पावर्स दे दिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन विंग को। 132(3) प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ये 60 डेज के लिए लगाया जा सकता है, ये अथोराइज ऑफिसर लगाता है। जहां पे एक तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में इनको दिक्कत हो रही हो और प्रैक्टिकली उनको सीज करने में दिक्कत है, तो वो वहां पे जैसे लॉकर्स हैं उनको वो एक बार सील कर देते हैं, और लॉकर्स को प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा के फिर जब इनकी सर्च वगैरह कंक्लूड हो जाती है उस टाइम पे डीडीआईटी जो होता है, मेन कंडक्टिंग डीडीआईटी, वो अपना ऑपरेट करता है या इनकम टैक्स ऑफिसर को भेजता है वारंट दे के। कई केसेस में जैसे एक सिंगल पर्सन को सर्च हुई और उसकी वाइफ का नाम नहीं है, पर यदि लॉकर में वाइफ का भी नाम होगा तो उसके नाम से भी वारंट इशू करना पड़ेगा जब लॉकर ऑपरेट होगा तो। और बाद में उसमें भी 158 BC या BD के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यदि अदर पर्सन के नाम से लॉकर है तो। यहाँ पे मेरा एक एडवाइस ये है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है सर्च केसेस का, कि अपने क्लाइंट्स को अपने को एडवाइस करना चाहिए कि रजिस्टर्ड सेल डीड्स, ज्वेलरी, उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, ये अपन लॉकर में रखें तो ज्यादा अच्छा है। समटाइम क्या होता है, सर्च प्रीमाइसेस पे से बंबई में सर्च हो रहा है और वहां से औरंगाबाद से, पूना से और दूसरी जगह से, नागपुर से ऑफिसर आ रहे हैं। वो लोग आते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, और वो जल्दी जल्दी करके अपना सर्च कंक्लूड करके और सामान देके कंडक्टिंग डीडीआई को चले आते हैं। सम टाइम आई हैव सीन इन नंबर ऑफ केसेस कि वहाँ पे रजिस्टर्ड ओरिजिनल रजिस्टर्ड जो सेल डीड्स होती है वो भी वो लोग सीज कर लेते हैं, FDR सीज कर लेते हैं,
कई डॉक्यूमेंट सीज कर लेते हैं, जो उनका जो रिलीज है वो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली। यानी to get the assessment done is a easiest task, but to get the jewelry back from the income tax department is very tedious job actually I seen in my career. So registered deed, sale deed, ज्वेलरी की वैल्यूएशन रिपोर्ट रखने से फायदा ये होगा कि वहां पे जब 4-5 दिन में जो अथोराइज ऑफिसर है वो अपना जगह पे वापस जाने के बाद डीडीआईटी एटलीस्ट अब जब उसको लॉकर को ऑपरेट करेगा, दैट टाइम यू कैन एक्सप्लेन कि भाई ये जो हमारी रजिस्ट्रीज हैं या ये जो ज्वेलरीज हैं ये हमारी एक्सप्लेन्ड है, हम उनके सोर्सेज बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, क्योंकि वी विल गेट सम टाइम एक्चुअली। अब द नेक्स्ट very important section, that examination of any person on oath 132(4). जब सारा सर्च होने के बाद सारा मटेरियल, सारे एविडेंसेस, कैश, ज्वेलरी का वैल्यूएशन और सब होने के बाद जो अथराइज ऑफिसर है वो 132(4) में असेसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। नॉट नेसेसरी लास्ट डे आप सर्च करें, वो बीच बीच में जब भी जरूरी समझता है उसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, और वो स्टेटमेंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज एविडेंस, एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग। सो उन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से अपने को जवाब देना चाहिए, उनको समझना चाहिए उनके क्वेश्चंस को, और उनके क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो एक अपन कॉपी और डायरी लेके बैठे हैं, उसमें आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख के उसको समझे और उसको समझ के जवाब दें। तो 132(4) जो है वो ओथ पे स्टेटमेंट होता है, और ओथ पे होने के कारण उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत हाई होती है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन है 10/3/2003 का कि हैज एडवाइज सर्च पार्टी नॉट टू ऑब्टेन कन्फेशन बाय अडॉप्टिंग कोर्सिव मीन्स। However, in practice, in almost all the cases, search parties insist upon getting confession. तो उसमें क्लियरली कहा हुआ है कि कोई भी प्रेशर में आप कन्फेशन मत दीजिए। कोर्सिव मीन से आपको डरा के, धमका के, डांट के, कॉन्सिक्वेंसेस बता के साहब ईडी को सर्च हो जाएगा, सीबीआई का सर्च हो जाएगा, आप मत डरिए इससे, और ऐसा कोई आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। असेसिंग ऑफिसर, अथोराइज्ड ऑफिसर जो होता है वो जो कुछ इश्यूज को लेके आपको कन्फ्रंट करता है 132(4) में। जैसे कैश के बारे में आपसे पूछेगा कि प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट में आपने जैसे सपोज करो जो कैश बताया और अभी जो आपके यहाँ टोटल कैश मिला, या जितना आपने प्रिलिमिनरी में बताया और आपके यहाँ जो टोटल मिला, यदि मैच भी हो जाए तो उसकी सोर्स आपको, ऑनर्स आपके ऊपर है, वो सोर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी लाइबल टू सीज। वो ऑथराइज ऑफिसर सीज करके पीडी अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर देगा। कैश वाले मैटर में जनरली मैंने देखा है कि भाई या तो आप बैंक के विड्रॉवल्स देखें, कोई हो आपको याद हो, बुक्स ऑफ अकाउंट यदि आप रखते हो तो उसके बैलेंसेस चेक करें, पर्सनल बुक्स रखते हो और उनकी बैलेंस शीट्स हो, और तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अथराइज्ड ऑफिसर whether he will accept your evidences or the arguments or not. It all depends on the authorized officer. और इन टू माय एक्सपीरियंस जनरली ये लोग ज्यादा से ज्यादा कैश सीज करना चाहते हैं, क्योंकि कैश और ज्वेलरी मेन इनका टारगेट, प्राइम टारगेट रहता है सर्च जब होती है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग आपका प्रिंसिपल डीआईटी, डीजीआईटी, सीपीडीटी चेयरमैन तक होती है। तो ये लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कैश उसका सीज हो, और आप असेसी और हम लोग चाहेंगे कि भाई उसका कैश कम से कम सीज हो। कई बार पिन मनी अपनी ग्रैंड मदर, नानी, दादी, उन लोगों की अलमारीज में भी काफी कैश मिलता है, तो बड़ा इमोशनल मोमेंट हो जाता है सम टाइम कि भाई ये कैश का एक्सप्लेनेशन अपन कैसे दें, पर कैश का एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही अथोराइज ऑफिसर आपका कैश
छोड़ेगा, otherwise he will not release the cash actually. Second is jewelry. This is also a very important and emotional topic. Now you are all aware the gold rate is 1 lakh rupees per 10 gram. In one case, I remember such happened, and there was some locker and find 1 or 2 kg jewelry in that locker. But I came to know that that locker has not been operated since last 3 years. तो इन दैट सिचुएशन आप ये बोल सकते हैं कि साहब आप बैंक से रिकॉर्ड वेरीफाई कर लीजिए, ये 3 साल पहले मेरा रिकॉर्ड लॉकर ऑपरेट हुआ था और 3 साल पहले का ही मैंने इसको ऑपरेट करके उस समय ये हमारी गोल्ड ज्वेलरी रखी थी, तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो 3 साल पहले के रेट से होगी, क्योंकि अभी तो जो 3-4 साल में रेट्स बढ़े हैं गोल्ड ज्वेलरी के वो फिनोमिनल हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने केस में देख रहा हूँ, कोई आईटीपी का जो ये बोगस डिडक्शंस में कवर किया था, अब वहां जो बोगस डिडक्शन के साथ साथ 1 kg गोल्ड ज्वेलरी भी उनकी सीज हो गई अपनी पर्सनल, तो वो 1 करोड़ रुपए की होती है। इट्स समथिंग फिनोमिनल अमाउंट तो ज्वेलरी वाले केस में। और यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ज्वेलरी का वैल्यूएशन अपन रेगुलरली कराते रहें और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट रखें, तो उससे कहीं ना कहीं उसके एडवांटेज अपने को मिलते रहेंगे। समटाइम विल की कॉपी होती है, हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड विल की कॉपी होती है, वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है इन केस ऑफ डिसीज्ड, तो उसकी कॉपी जो भी सर्च टीम होती है, ऑथराइज ऑफिसर होती है, उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि ये विल की कॉपी आप इसकी सीज कर लें, इसकी विल की कॉपी का कॉग्निजेंस ले लें, नहीं तो हम 132(4) या प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट जहाँ पे भी पॉसिबल हो हम बोल दें कि साहब मैं, जब वो पूछते हैं कि आप और कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ लिखा दें अपन के भाई ये हमारे दादाजी दादी जी या जो भी घर में फैमिली मेंबर जिसका विल रजिस्टर्ड विल है एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो definitely you will get the advantage at the time of appeal tribunal actually. In case of no evidence, CBDT circular 1914, 500 gram in case of married lady, 250 gram in case of unmarried daughter, 100 gram in case of male. समटाइम इट हैपन्स के हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी बेटी अमेरिका रहती है और वो साल में 1 बार 2 बार आती है, उसकी ज्वेलरी हमारे पास रखी हुई है, तो इन सच सिचुएशन you must keep some evidence or valuation report or something you should have actually to show the authorized officer. That is all right, practically it is possible कि sometime in foreign countries they do not, yeah, they would not like to wear all jewelries and all that, that is not in prevailing, but आपको कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा। बुलियन और गोल्ड कॉइन के ऊपर ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा। बुलियन और गोल्ड कॉइन हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। बुलियन रखने की बजाय तो आप उसको ऑर्नामेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कराने की एडवाइस करें क्लाइंट को, तो एटलीस्ट वो चीज़ सेव हो सकती है। गोल्ड कॉइन भी उसमें इंस्ट्रक्शन में नहीं है। अब आजकल डायमंड ज्वेलरी का काफ़ी मार्केट में ट्रेंड है, तो डायमंड ज्वेलरी काफ़ी मिलती है। तो 1914 वाले सर्कुलर में समटाइम मैंने देखा है कि जैसे सपोज करो 500 ग्राम ज्वेलरी का वैल्यू हुआ आपका 50 लाख, और उसके यहाँ पे क्योंकि डायमंड ज्वेलरी के बारे में जो 1914 जो सर्कुलर है वो कुछ नहीं कहता है, डजंट स्पीक एक्चुअली, बट उसकी जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन से भी ऑथराइज ऑफिसर कई बार मान जाता है कि हम लोग इस डायमंड की वैल्यूएशन निकाल के एज गुड एज उसका जितना गोल्ड ज्वेलरी है हम उतना छोड़ देते हैं। तो समटाइम दे कन्विंस दे कैन डू इट एक्चुअली। इन्वेंट्री स्टॉक वैल्यूएशन समटाइम आई सीन इन मेनी केसेस के बहुत जल्दबाजी में आप स्टॉक वैल्यूएशन जो करते हैं उसमें
कई बार जो ऑथोराइज्ड वैल्यूअर या जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर या प्राइवेट वैल्यूअर्स भी आते हैं, जैसे हमारे एरिया में कॉटन वगैरह का स्टॉक होता है, स्टील का स्टॉक होता है, तो उनके स्पेशलाइज्ड अपने वैल्यूअर्स होते हैं, तो उनको डिपार्टमेंट कॉल करता है, उनकी वैल्यूएशन करता है, वो भी अपने से डिटेल वगैरह लेते हैं। उस टाइम पे आप वैल्यूएशन, यदि आपको लग रहा है कि ज्यादा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको साइन नहीं करें जल्दी से। सम टाइम ऐसा लगता है कि अरे जितना जल्दी सर्च खत्म हो उतना जल्दी अपन फ्री हो जाएंगे, ये तो अपन बताते रहेंगे या बाद में बता देंगे, जल्दी क्या है, अभी एक बार इनकम टैक्स वाले तो चले जाएं। ये वाले विम्स में आप कभी नहीं रहे। स्टॉक वैल्यू, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन स्टॉक वैल्यूएशन, देन यू शुड रजिस्ट ऑन दैट टाइम इमीडिएटली। उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज आप बाद में आफ्टर थॉट वाली कोई बात करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। So these are the main issues while recording of statement under section 132(4) on oath. यहाँ मैंने कुछ दिया है कि how to give statement, and these are the all. And one thing I would like to say that there is a Patna High Court decision in the case of Chief CIT versus State of Bihar through Chief Secretary 2012-2005. यहाँ पे एक बार कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन हुआ असेसी का, 1 रात 2 रात। तीसरे दिन फिर उसने रजिस्ट किया कि साहब मेरे को आप दिन में भी स्टेटमेंट ले रहे हैं, रात में भी स्टेटमेंट ले रहे हैं, और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और आई एम नॉट इन अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। और उसके बाद में उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को उसमें कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करके फिर उन्होंने केस फाइल किया। केस फाइल किया तो उन्होंने डायरेक्शन दिए चीफ सीआईटी को कि भाई आप इस तरीके से कंटिन्यूअस इंट्रोगेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया कि आप ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट आपको प्रॉपर पॉज और प्रॉपर रेस्ट आपको असेसी को देना है। तो आजकल जनरली कई बार सर्चेस 8-9 बजे लोग वाइंड अप करके सवेरे स्टार्ट करते हैं। अब रात को स्टेटमेंट नहीं होते हैं तो पर भी है सीन एंड नंबर ऑफ सर्चेस कि रात भर वो लोग जान करके ऑफिसर्स वगैरह स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे ताकि असेसी टायर्ड हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो वो इस इरिटेशन में अपना एक्सेप्टेंस दे दे, चीजों को एक्सेप्ट कर ले। तो ये जो सर्क्यूलर है सीबीडीटी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर। The very important topic I am dealing, the retraction of confession made in statement. The first thing is that if we accept or confess something in recording of statement under section 132(4), if it is not corroborative, then there will be no impact at all. There are many decisions of High Court and Supreme Court to support our contention, but आजकल एक नया चीज हो गया है कि ये लोग जो इन्वेस्टिगेशन विंग है कई बार स्टेटमेंट की कॉपी नहीं देते हैं। अभी एक रिसेंट सर्च 3-4-5 महीने पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी सिस्टर के यहाँ हुई थी, तो उसमें उन्होंने मटेरियल भी नहीं दिया था हमको। उन्होंने कहा कि जब हमको आपके अगेंस्ट में यूज करना होगा, जब हम आप मटेरियल की फोटोकॉपी और स्टेटमेंट की कॉपी देंगे। In such situation, retraction is very difficult to file. A retraction is very difficult proposition, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट अपना एम्प्लॉई, अपने सारे फैमिली मेंबर, सारे अदर पीपुल का नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप क्या बोलेंगे कि आपको जोर जबरदस्ती करके क्या कहलवाया उन्होंने। तो रिट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट के लिए मेरा यही यहाँ पे एक एडवाइस है कि आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिगेशन विंग को अपना रिक्वेस्ट लेटर देते रहें कि भाई कॉपी ऑफ स्टेटमेंट सप्लाई करें, लूज पेपर्स की फोटोकॉपीज दें, और वो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होगा कि भाई आपने तो उनको परस्यू किया, आपको यू wanted to retract all those things before the investigation being, but since they have not supplied these
copies of statement and the copies of loose paper, so the retraction is delayed. क्योंकि जब बाद में CIT अपील और ITAT के सामने जाते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि बड़ा आपका डिलेड है, बट डिलेड इसीलिए है कि डिपार्टमेंट हमको पूरे पेपर्स नहीं दे रहा है, कॉपी नहीं दे रहा है, वैल्यूएशन की कॉपी नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या चीज उनको अभी एकदम प्रीमेच्योर कहेंगे अपने उसमें। तो ऐसे मैटर्स में मेरा यही एडवाइस है कि हम लोग क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि अपने विटनेस, दोनों विटनेस के नाम से, अपने जितने फैमिली मेंबर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके नाम से हम स्टाम्प परचेज करके रख लें। जब भी अपने को सेंट्रल में जाने के बाद स्टेटमेंट की और लूज पेपर की या वैल्यूएशन की कॉपी मिलेगी, दैट टाइम वी कैन फाइल अवर रिट्रैक्शन एंड वी कैन से व्हाई इट इज डिलेड। The another two provision they have inserted from 1st April 2017, that is a provisional attachment 132 9B and 9C. In some recent searches at Bhopal, the principal DIT has attached, actually the DDIT has attached some properties. One glitch in the provision के जो लास्ट ऑथराइजेशन से 60 दिन में आपको अटैचमेंट ऑर्डर पास करना है, प्रोविजनली अटैच करना है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। और 132 9C में उन्होंने लिखा है कि ये ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। तो अब जैसे सर्चेस हो रही हैं अभी 1/9/24 के बाद से, तो उसमें 18 महीने का कुल टाइम है, 6 मंथ अपन मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए और 12 मंथ असेसमेंट के लिए है। पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन विंग से अप्रेजल रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं टाइम पे, और यदि वो लोग कोई अटैचमेंट भी करते हैं तो 6 मंथ उनको वहीं हो जाते हैं, और वो जो ऑर्डर होता है वो सीज हो जाता है बाय वर्चू ऑफ 132 9C। और फर्दर उसका यदि अटैचमेंट करना है तो 281B1 में जो वर्डिंग्स है वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, तो अभी तो सेंट्रल में केस गया नहीं है, अप्राइजल गई नहीं है और वहां से नोटिस इशू नहीं हुए, तो नोटिस इन द एब्सेंस ऑफ नो नोटिस इशू, तो जो पेंडेंसी है वो तो अभी वहां पे क्रिएट हुई नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 281B1। तो वी शुड कीप इन माइंड अबाउट दिस सेक्शन। द नेक्स्ट वन, एस्टिमेशन बाय वैल्यूएशन ऑफ ऑफिसर, ये भी 1/4/17 से इन लोगों ने इंसर्ट किया है। पहले के सर्चेस में क्या होता था कि कई बहुत बड़े ह्यूज इंटीरियर डेकोरेशन, ह्यूज बंगलोज और काफी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़े इन्वेस्टमेंट्स इनको नजर आते थे। तो ये लोग आई हैव सीन इन नंबर ऑफ केसेस कि वहीं पे वो वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला के एक पेपर के ऊपर उससे एक एस्टीमेट ले लेते थे और क्लाइंट को फोर्स करते थे कि आपका जो घर है ये आपने 3 करोड़ ही बताया हुआ, पर ये हमारा जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो 10 करोड़ बोल रहा है, तो आप इसको कहने का मतलब ये है कि डिस्क्लोज करिए। तो एक तो ये चीज होती थी, और दूसरा कई बार वैल्यूएशन की रिपोर्ट लेके वो लोग अप्राइजल में इसको इनकॉर्पोरेट करते थे, तो फिर लोगों ने एक ऑब्जेक्शन लिया कि भाई ये इलीगल है, जब तक आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है जब तक आप वैल्यूएशन करा नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट रेफर फॉर द वैल्यूएशन। तो फिर ये लोग एक प्रोविजन 132 9D में लेके आए हैं कि if authorized officer may during the course of search and seizure within a period of 60 days from the date on which the last of the authorization for search was executed make a reference to valuation officer or any other person। तो यहाँ पे वो रेफरेंस किया जा सकता है, पर स्टिल अभी इसमें लिटिगेशन है, एक CIT वर्सेस GK
सेनीपान 2006 टू 284 ITR, उसमें ये कहा है कि जब तक कि कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल नहीं मिलेगा वैल्यूएशन को लेके या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट को लेके, तो देयर कैन नॉट बी एनी वैल्यूएशन। जो असेसी ने दिखाया वो सही है। There are provision for prosecution during the search proceeding, and I have given a chart actually कि जैसे आपके घर में सपोज करो किसी ने सर्च किया और वहां पे एक नीरज अग्रवाल करके नाम का आदमी है, और उन्होंने असेसी से जाके पूछा कि भाई ये कौन है, आपके साले हैं, आपके दोस्त हैं, क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये फला फला मोहनलाल। तो वो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, आप किसी की आइडेंटिटी नहीं छिपा सकते, जो है वहां उसका आपको सही बताना पड़ेगा कि ये फला आदमी है, इसका नाम ये है और इसका काम ये है। उसमें उन्होंने ये सेक्शन 319 भारतीय न्याय संहिता जो नया आया है उसमें ये प्रोसिक्यूशन दिए हैं, और कई मैटर्स को लेके उन्होंने प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजन बताए हैं कि प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू आंसर। यदि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उसमें यदि आप आंसर देने के लिए मना करते हैं, उसमें भी आपका प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए तो है ही, फॉल्स एविडेंस आप देते हैं उसके लिए भी है ना। और आप जैसे रिस्ट्रेन ऑर्डर लगा देते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं, तोड़ते हैं, उसे छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको भी लेके प्रोविजंस इसमें प्रोसिक्यूशंस में है, वो प्रोसिक्यूशन आपका लॉन्च कर सकते हैं। एक सेक्शन है 132A, पावर टू रिक्विजिशन सेक्शन 132A। आपने सुना होगा कि बॉम्बे से पुणे एक कार जा रही है और उसके अंदर 2 करोड़ कैश और 2 किलो गोल्ड मिला। पुलिस या ने इंटरसेप्ट किया, पुलिस इंटरसेप्ट करके पहला प्रिलिमिनरी अपना इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहीं क्राइम प्रोसीडिंग या क्राइम प्रोसीड से रिलेटेड तो नहीं। उसके बाद उसको लगता है कि बिजनेसमैन है या हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो वो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करती है। इनकम टैक्स अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उसकी रिक्विजिशन करता है। तो ये 132A का यूज रिक्विजिशन में किया जाता है। दूसरी अथॉरिटी के पोजीशन में जब भी एनी मनी बुलियन और आर्टिकल जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है उनमें पाई जाती है और उसको इनको टेक ओवर करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे 132A के प्रोविजन लगते हैं। और 132A में सारी प्रोसीडिंग 132(1) सब सेक्शन 1 के क्लॉज ABC में वही वारंट लिया जाता है प्रिंसिपल DIT से, और सारी एक्शन और सारे मैटर्स उसी हिसाब से इसमें होते हैं, असेसमेंट वगैरह सभी होते हैं इसके अंदर। वन 132A में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनवरी 2025 में गुजरात में सर्च हुई, असेसी का नाम मैं नहीं बोलूंगा। वो उसका काम यही था कि 132A के जितने लोग होते थे जिनका कैश ज्वेलरी या 132(1) की सर्च में कैश वगैरह पकड़ा जाता था, तो उसने 60 जगह ओवर ए पीरियड 60 प्लेसेस पे अपना क्लेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया था कि साहब ये दिस केस बिलोंग्स टू मी, क्योंकि वो अपनी बुक्स में 200-300 करोड़ कैश और कई चीजें वो मेंटेन करके रखता था। तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ने परेशान होके उसको जनवरी 2025 में उसको सर्च ही कर दिया ताकि उसका ये वाला काम बंद हो जाए। तो डिपार्टमेंट को जो म्यूजिक वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करना होता था और जगह जगह उनको प्रोसीडिंग फेस करना होती थी, वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने 60 प्लेसेस के ऊपर ये अपने क्लेम
लगा रखे थे गुजरात के असेसी ने, जिसको जनवरी 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट्स सेक्शन 132B। कैश सीजर होता है सर्चेस में, सभी लोगों को पता है, पर 1/4/2013 में चिदम्बरम साहब को पता नहीं ये कैश का जो एडजस्टमेंट है, सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स में जो एडजस्ट हो जाता था रिटर्न भरते टाइम 1/4/2013 के पहले, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये अब आपका जो कैश है ये आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, और वो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी आपका जब असेसमेंट फाइनल हो जाएगा, वो असेसमेंट फाइनल होने के बाद जो लाइबिलिटी आएगी दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। एक मैटर मैंने हैंडल किया था डॉक्टर साहब का, तो उनके लॉकर में करीब 40 से 45 लाख रुपए कैश सीज हुई, और ये 1/4/2013 की बात थी। अब उनका 2 करोड़ का रिटर्न फाइल हुआ, मैंने अलग से टैक्स भरा, क्योंकि वो जो कैश सीजर था वो उसमें एडजस्ट होना नहीं था। बाद में जब उनके असेसमेंट वगैरह हुए, जब बड़ी मुश्किल से उनको फिर रिफंड दिलवाया गया। तो ये 132B एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट्स 132B में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। इसके अलावा भी जैसे सर्च होती है, और सर्च कंक्लूड होने के बाद, सपोज करो 15 जुलाई 2025 को सर्च हुई और वहां पे आपके 10 लाख रुपए कैश सीज हुई और 1 किलो आपकी गोल्ड ज्वेलरी सीज हुई, तो उसके एंड ऑफ द मंथ से आप 30 डेज में एक एप्लीकेशन एओ को लगा सकते हैं, असेसिंग ऑफिसर को, जहां पे पेन आपका सेंट्रलाइज है। वो एओ, उसमें आप उसका नेचर, सोर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं एओ को, और वो असेट इफ ही सेटिस्फाइड विद द नेचर एंड सोर्स, he will release that asset cash jewelry in from the application filing से 120 days के अंदर। पर ये प्रोविजन जरूर दिया हुआ है एक्ट में, पर इसमें एक डाइकोटॉमी है कि सर्च तो डीडीआईटी कर रहा है, केस आपका सेंट्रलाइज सेंट्रल में होना है जाके। एप्लीकेशन का जो प्रोविजन दिया है, वो एप्लीकेशन का प्रोविजन आपका सेक्शन 132B में दिया है। तो देर आर 3 पीपुल, एक डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन है, एक है आपका जहां पे सेंट्रल में केस जाना है, और एक है आपका असेसिंग ऑफिसर। एप्लीकेशन लगाने की बात उन्होंने कही हुई है, क्योंकि 30 डेज में लगाना है, तो वो केस जब तक ट्रांसफर ही नहीं होता है, तो जो पैन जिसके पास रहता है, से उज्जैन में कोई सर्च हुई और उज्जैन में ये कैश मिला और ज्वेलरी मिली, तो मैं उज्जैन के इनकम टैक्स ऑफिसर को वो एप्लीकेशन लगाऊंगा। पर जो बात 120 दिन में रिलीज करने की कह रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से होगा। तो ये एक बड़ी डाइकोटॉमी है, डोंट नो, बट दिस इज द प्रोविजन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है एक प्रेजेंस ऑफ काउंसिल ड्यूरिंग द सर्च। इन माय ओपिनियन नॉट अलाउड ड्यूरिंग द सर्च, क्योंकि कोई लॉ नहीं है जो अपने को परमिट करता हो प्रेजेंस अपनी, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, इसमें हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करके फिर हम अप्राइजल बनाते हैं, और अप्राइजल बना के हम इसको सेंट्रल में भेजते हैं, और जब असेसमेंट करते हैं तब आपका काम चालू होता है। दैट टाइम यू कैन अपीयर इन द सेंट्रल, पर ड्यूरिंग द सर्च प्रेजेंस ऑफ काउंसिल इज नॉट अलाउड एट ऑल। इट इज लाइक दैट कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो लोग चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं, और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद वहां पे जब ट्रायल चालू होती है, तब वहां पे एडवोकेट या काउंसिल का काम वहां चालू होता है। तो प्रेजेंस ऑफ काउंसिल ड्यूरिंग द सर्च इज नॉट अलाउड। सर्च सर्वे एट सीएज ऑफिस एक बड़ा ओल्ड सर्क्यूलर है, 7D 3/5/1967।
it would be improper for an income tax officer or inspector authorized by him in this behalf to enter the office of the chartered accountant for the purpose of inspecting the books of each client. Honorable Supreme Court in the case of ITO versus UK Mahapatra and Company 2010 186 taxman 181, wherein it is held that the precondition for conducting survey under section 133A in the premises of chartered accountant, lawyer, tax practitioner in connection with survey of the business place of their client is that the client in course of survey must state that his books of account document records are kept in the office of a chartered accountant, lawyer, tax practitioner. Unless this precondition is fulfilled, the income tax authority does not assume any power to enter the business premises, office premises of the chartered accountant, lawyer, tax practitioner to conduct survey under section 133A in connection with the survey of the premises. तो ये यूके महापात्रा का जो डिसीजन आया 2010, उन्होंने इसमें इस ओल्ड सर्कुलर का रेफरेंस दिया है कि अनलेस अंटिल जब तक कोई सेटिस्फेक्शन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो तब तक क्लाइंट नहीं बोले, वो आपको शो करना पड़ेगा यदि कल से सब जुडाइस होगा मैटर या कोर्ट में जाएगा तो, कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर रिलेवेंट मैटर सीएस के ऑफिस में रखा हुआ है। पर जनरली ये होता है, सारे क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ डाटा है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट है, और ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो उन केसेस में कई बार सर्च और सर्वे का म्यूजिक हम लोगों को फेस करना पड़ता है। पर वहाँ पे जनरली देखा जाए तो उस क्लाइंट से रिलेटेड ही डाटा, जैसे एसआर बॉटली बाय एंड कंपनी का डिसीजन मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया था, टच कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई डाटा टच नहीं कर सकते हैं। पर अगेन कई कोर्ट के डिसीजन है कि इवन दो सर्च इज इलीगल, पर द मटेरियल फाउंड, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल फाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट इन द अदर प्रोसीडिंग्स, तो वो तो एक हमेशा रहते ही। प्रिजम्पशन ऑफ ऑनरशिप 132(4) है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें घर में सर्च होने के बाद, प्रीमाइसेस पे सर्च होने के बाद जनरली पहले के लोग यही बोल देते थे कि साहब ये कागज हमारा नहीं है, ये कैश हमारी नहीं है, ज्वेलरी हमारी नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है। तो इसके लिए 132(4) में एक प्रिजम्पशन लाया गया और उन्होंने कहा कि सर्च के दौरान कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल आपके पोजीशन में जो मिलेगा वो आपका होगा। और ये प्रिजम्पशन रीबटेबल है। आप बाद में या ड्यूरिंग द सर्च या आप एविडेंसेस दे देंगे तो वो मान लिया जाएगा कि वो आपका नहीं दूसरे का है। जैसे मैंने एक आरटीओ साहब का कहा था कि उनका जो ब्रीफ केस था वो एक स्टील ट्रेडर के यहाँ पे रखा हुआ था, तो उसने सर्च के दौरान ही बोला कि साहब ये मेरा नहीं, इनका है। तो ये जो प्रिजम्पशन है रीबटेबल है, पर बहुत सारे इनको लेके डिस्प्यूट्स होते थे, तो ये 132(4) है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 292C एक सेक्शन, पैरेलल सेक्शन लाया गया। एक सीआईटी वर्सेस पीआर मेत्रानी एचयूएफ का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, द स्कोप ऑफ द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 132(4) ओनली लिमिटेड टू सर्च प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि 132(4) है सिर्फ सर्च प्रोसीडिंग के लिए है, ओनली लिमिटेड टू सर्च प्रोसीडिंग, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द सर्वे और अदर प्रोसीडिंग। तो फिर इसको 2008 में ये लोग 292(C) को लेके आए, जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है 1975 से एप्लीकेबल है। डम डॉक्यूमेंट मीन्स हैज नो वॉइस, जिसका कोई वॉइस नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन और असेसी टू असेसी एवेल्यूएट करना पड़ता है कि भाई उसकी कितनी सेंसिटिविटी है, लीगलिटी है, या उसके ऊपर क्या इनकम वर्कआउट हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो एक इवेल्यूएशन वाला सब्जेक्ट मैटर है। और
there cannot be any addition on the basis of dumb document. इसके कई important case laws हैं, as you all aware, VC Shukla, Common Cause, Vatika, Vivek Agrawal, that we can use, and I demonstrate some dumb document. The appraisal report में तो department इसका पूरा अच्छा लंबा चौड़ा जोड़ कर ही देता है, पर these are all dumb document. यहाँ duplication है, ऊपर यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ नीचे 15 लाख लिखे हुए हैं, तो there should be one addition, 15 lakh, not 30 lakh. ये एक व्हाट्सएप चैट है जो जनरली आप लोग देखते हैं, 25 kg टू छोटू, नोट नंबर शिलोंग 9 AM, रिसीव 25 kg, बैलेंस 5 kg. ये भी जो व्हाट्सएप एविडेंसेस है अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा. दीज आर द सेकेंडरी एविडेंस, इट शुड बी कोरॉबरेटिव. इंटरमीटिंग पेपर. अब एडमिसिबिलिटी ऑफ ई एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द सर्च. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज. आजकल हार्ड कॉपीज की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बहुत मिल रहा है, डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है. मोबाइल डाटा बहुत फेटल लोगों के मोबाइल से मिलता है. पेन ड्राइव्स एम्प्लॉइज क्या रखी रहती है, तो वो ये लोग उनको मार पीट के ले आते हैं. VCD, कैमरा, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ईमेल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन. तो इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में एक तो उन्होंने कहा है कि भाई ये 65B में इसका सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, इसकी हैश वैल्यू मेंशन होना चाहिए, पंचनामे में ये सारा रिकॉर्ड आना चाहिए, तो ही ये वैलिड होगा डाटा दैट कैन बी यूज्ड इन द असेसमेंट. और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, अनवर PV के बशीर, उन्होंने अभी इसको व्हाट्सएप डाटा को अभी एविडेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट नहीं किया है. एक बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट केस आया है अभी रिसेंटली, सर्वना सेल्वरथम रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT मद्रास हाई कोर्ट, 23 February 2024 by Justice Krishnan Ramaswamy. Search and seizure action at company premises, seized electronic data without adhering to digital evidence investigation manual issued by CBDT 2024. The CBDT has issued one digital evidence investigation manual. तो उसके हिसाब से यदि वो डाटा सर्टिफाइड नहीं है तो उन्होंने उसको क्वैश कर दिया एडिशन को, और असेसमेंट ऑर्डर में उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि ये जो मैनुअल है, इसके मैनुअल के जो नॉर्म है इट शुड बी फॉलो. तो ये साइटेशन है सर्वना सेल्वा रत्नम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, 23 February 2024. वर्चुअल डिजिटल स्पेस 2025 में जो इनकम टैक्स का नया बिल आ रहा है उसमें नामकरण संस्कार, हम बोलते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो नामकरण संस्कार कर देते हैं, तो नामकरण संस्कार उन्होंने कर दिया. इसका नाम रखा है वर्चुअल डिजिटल स्पेस. क्लॉज 247 में करीब करीब उन्होंने सारा कवर कर लिया है जो अपने से अभी इस वाले लॉ में छूट जाता था, और सेकेंडरी एविडेंस या प्राइमरी एविडेंस. अब ये सारे आपके जितने भी ईमेल्स हैं, क्लाउड स्टोरेज हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे आपके मेन एविडेंस हो जाएंगे नए वाले इनकम टैक्स बिल में. और इसका जो मैंने सेक्शन पढ़ा है उसमें तो उन्होंने कहा है कि दे कैन सीज द कंप्यूटर आल्सो. तो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली. समन की कंट्रोवर्सी होती है कि दिल्ली में सर्च हुआ और 131(1)A में DDIT बम्बई वाले बंदे को बुला रहा है या इंदौर वाले बंदे को बुला रहा है. इन माय ओपिनियन 500 किलोमीटर्स से ज़्यादा का यदि डिस्टेंस है तो उसको एयर टिकट देना पड़ेगा. और ये जो CPC का रूल 19 ऑर्डर 16 में सारा मेंशन किया हुआ है, तो ही कैन नॉट force our attendance to Mumbai or Delhi. Rather we should file our reply and
Otherwise, he can do one thing, that DDIT can issue commission to the Mumbai investigation being DDIT, or Indore investigation being DDIT, to inquire that assessee who is staying or residing at Mumbai or Indore. So that he can do, but he cannot force our attendance there. In my search and seizure chapter, it is the last, the appraisal report. Appraisal report is an internal and confidential document. It is nowadays, I feel it is like a cluster bomb. The America has thrown on the Iran, the Israel has thrown the other country. So, or we can say it is a painless surgery. यानी जैसे क्लोरोफॉर्म देके मरीज का ऑपरेशन कर देते हैं ना, और फिर जब क्लोरोफॉर्म का असर खत्म होता है तो दर्द चालू होता है। तो अप्राइजल एक बहुत बड़ी चीज है। जब शोकाज आने लगते हैं तो आइडिया लगता है कि जो DDIT, ADIT और DIT साहब ने अपना जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस्तेमाल करके उसको कितना बड़ा छोटा बनाया है। और दो तरीके से वो लोग उसके अंदर पूरा प्रोसीडिंग तो रहता ही है अपने सर्च और सीजर से रिलेटेड, वो क्वांटिफिकेशन भी करते हैं अपनी अनडिस्क्लोज इनकम का। कई बार वो क्वांटिफाइड ही कर देते हैं कि भाई आप जोड़ दीजिए, ये हमारे पास तो एविडेंसेस बहुत अच्छे हैं। और कई चीजों में उनको थोड़ी दया आ जाती है तो वो लिख देते हैं कि एओ में वेरीफाई देन टेक ए डिसीजन। और कई केसेस में डेविएशन की भी इसमें एक इंटरनल एक इनको इंस्ट्रक्शन है। तो वो डेविएशन ऐसे होता है कि सपोज करो एओ ने अपने को एक लेटर दिया और शोकाज देने के बाद में हमको लगता है कि ये जो एडिशन है ये ज्यादा है, इतना हमारा बनता नहीं है, तो एक डेविएशन की एप्लीकेशन हम सेंट्रल की एओ को लगाते हैं। वो डेविएशन एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल के थ्रू विंग में जाता है और दोनों प्रिंसिपल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन और प्रिंसिपल CID सेंट्रल की मीटिंग होती है। और वो यदि एक्सेप्ट करते हैं उस डेविएशन को तो वो हमारा जो क्वांटिफाइड एडिशन जो प्रपोज किया है अप्राइजल रिपोर्ट में वो कम हो सकता है with the prior approval of both the dignitaries, principal DIT investigation and principal commissioner central. Now I come to the block assessment. I have 7-8 minutes left. आप लोगों ने एक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा। 1300 ईस्वी में एक मुगल साम्राज्य के बड़े सम्राट हुए थे, पर बताते थे कि बादशाह तो मूर्ख थे पर अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिषी और चिकित्सा का बहुत गहरा ज्ञान था। अब चंगेज खान और मंगोल शासकों का उस समय खतरा उनको मंडरा रहा था, क्योंकि दिल्ली में शासन करते थे। तो उनको किसी ने ज्ञान दिया कि भैया आप दिल्ली से जो अपनी राजधानी है दौलताबाद, जो आज की तारीख में औरंगाबाद बोलते हैं, वहां शिफ्ट कर लो। तो उन्होंने वो जो अपनी राजधानी है 2032 किलोमीटर दूर, पूरी राजधानी, पूरी प्रजा, सबको लेके वो दौलताबाद चले गए। बाद में वहां उनको बहुत दिक्कत आई, बहुत प्रॉब्लम हुई उनको राज्य करने में। फिर वो पूरी राजधानी ऐसी की ऐसी लेके वापस दिल्ली आए, तब जाके उनको ठीक हुआ। तो वैसे ही मैटर ये ब्लॉक असेसमेंट में हुआ है। और 2024 में गवर्नमेंट ने दया करके और 1 सितंबर 2023 से ये ब्लॉक असेसमेंट के प्रोविजन ये लेके आए हैं। पर मेरा यहाँ कहना है कि जो 1/4/21 से लेके 30/8/24 के बीच में जितनी सर्चेस हुई हैं उन केसेस में क्या होगा, क्योंकि उनमें इतना लिटिगेशन हो रहा है अभी, जिसका कारण ये है कि वो उन्होंने खुद ने फाइनेंस बिल में जो कहा है, मैं पढ़ देता हूं कि सर्चेस कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर अनअर्थिंग ब्लैक मनी, हाउएवर इट हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द फील्ड फॉर्मेशन that there are multiple problems that are arising under the present scheme of search assessment. Under section 148 of Act, absence of any legal requirement for consolidated assessment in such cases has to lead to a situation where every year only the time barring year reopened in the case of search assessee. This result in staggered search assessment for the same search. Consequently, the searches may
assessee may be engaged in search assessment process for almost up to 10 years. वो खुद कह रहे हैं कि साहब जो assessee है वो 10 साल तक बिजी रह सकता है ना। और आगे बोल रहे हैं वो लोग कि this is a time consuming process which escalate the litigation cost for the taxpayer as well as for the department. For duration of such period, legal position on an issue may undergo change leading to different edition and different years on the same issue. Moreover, since such a long duration is involved, there is a possibility of change of opinion with respect to the line of inquiry. Further, due to such staggered assessment, coordinated investigation is not feasible in such cases. अब आप देखिए साहब, जो सर्चेस हुई हैं उनमें इतना पेनल्टी 115 बीबी फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यदि उनका वो टोटल कर लिया जाए तो यानी उसका जो लिटिगेशन अभी हमको दिख रहा है, जो हम लोग लिटिगेशन फेस कर रहे हैं, वो फिनोमिनल है। उसका जो पेन है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होगा। ब्लॉक असेसमेंट इनफैक्ट इट इज ए गुड प्रोविजन, और ये पुरानी वही बकेट है 95 से 2003 वाली। इसमें अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन में इन लोगों ने थोड़ा चेंज किया है, 158 कैपिटल बी में स्मॉल बी, और एनी इनकम के साथ में इन्होंने और एनी एक्सपेंडिचर भी इंसर्ट कर दिया है। ऊपर आप देखेंगे जो 2025 की मैंने बात कही कि वर्चुअल डिजिटल असेट इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट 2025 ले आए हैं, उसका एक अपना न्यूसेंस या जो अपना वॉइस है वो अब चालू हो जाएगा। और नीचे उन्होंने एक कृपा की है, मैं इसको कृपा ही बोलूंगा या मर्सी की है। यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिया था टू बी फॉल्स, तो फॉल्स मींस इट इज लाइक समथिंग मेंसीरिया, उसकी जगह इन्होंने कर दिया है फाउंड टू बी इनकरेक्ट। दो फाउंड टू बी इनकरेक्ट इज अ माइल्डर वर्ड इन कंपेयर टू फॉल्स एक्चुअली, so this is good and welcome. I have given the false and incorrect meaning of the terms. Provision of section, I will quickly read out. There is a one block assessment. If search happened on 30 June 2025, तो back 6 year, 25 से पीछे के, और 6 मंथ का ये 2 रिटर्न्स फाइल होंगे। आपका पूरा एक ब्लॉक बनेगा 6 ईयर प्लस ब्रेक पीरियड का, यानी 1 अप्रैल टू 30 जून 2025 and the remaining period, and other return you have to file the regular income, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने रेगुलर बिजनेस की दिखाते हैं वो रिटर्न आपका अलग से फाइल होगा। पर जो प्रोविजन में इन्होंने चेंज किए हैं उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज छोड़ी नहीं है। बाकी की बुक्स भी ये रिविजिट कर सकते हैं। 60% का टैक्स रेट इन्होंने इसमें दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 158 कैपिटल BB1 में इन्होंने एक मेजर चेंज किया है। यहाँ पे सेक्शन में रिलेटेबल टू सच एविडेंस इन्होंने हटा के, और इन्होंने एविडेंसेस अवेलेबल विद द असेसिंग ऑफिसर। तो नया जो ये सेक्शन लेके आए हैं, और इन्होंने अनडिस्क्लोज इनकम की जगह टोटल इनकम वर्ड रिप्लेस कर दिया है। Undisclosed income declared in the return under section 158 BC, undisclosed income is determined by the AO, A plus B. कुछ एक्सक्लूजन है जो अनडिस्क्लोज इनकम 158 BB1A में उन्होंने किए हैं, जो रेगुलर इनकम या पहले जो आपके असेस हो गए 153A सेटलमेंट कमीशन, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। सरचार्ज एजिफ नाउ अभी तक नहीं है,
115 BB भी एज इफ नाउ नहीं दिख रहा है इसमें अभी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 234 A B C का सर्च एक्शन होने के बाद विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर आपको ये वो नोटिस इशू करेगा। 60 दिन में आपको रिटर्न फाइल करना है। दैट विल बी ट्रीटेड रिटर्न एज अंडर सेक्शन 139 143(2) का नोटिस इशू होगा। उसके बाद 12 मंथ में आपका असेसमेंट होना है। यानी सर्च का लास्ट जो ऑथराइजेशन आपका ड्रॉ हुआ है उससे 18 महीने 6 महीने इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए 12 मंथ आपको मिलेंगे और दे विल पास द ऑर्डर with the prior approval of 158 BG. You can also keep in mind the provision of prior approval of higher authorities under section what happened in 158 this B 153B. No revised return is permissible. The 158 BD is a very unfortunately there is no threshold limit prescribed in 158 BD. Even in the entry of rupees 5,000, 10,000 or anything found at the other place searched person, they can reopen your assessment. 148 में तो जिस साल में आपको मटेरियल होता था उसी साल का खुलता था, पर 158 BD में आपका पूरा 6 ईयर और प्लस ब्रेक पीरियड का असेसमेंट होगा। और जो रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो सीने qua नॉन कलकत्ता नीट वियर में एक डिसीजन आया था और उसके बाय वर्चू ऑफ दैट डिसीजन 24/2015 में एक सर्कुलर इशू हुआ था, डिपार्टमेंटल सर्कुलर के इसमें कोई भी 158 BD नोटिस देने के पहले आपको रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नेसेसरी। तो RTI के थ्रू आप अप्रूवल और रिकॉर्डिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन पे भी ट्रैक रखें, दैट विल बी हेल्पफुल यू। There is no penalty. The other penalty इंटरेस्ट 1.5% से आपको इंटरेस्ट लगेगा और 50% पेनल्टी ये लोग लेंगे। जो आपने सपोज करो ब्लॉक का रिटर्न 1 करोड़ का भरा है और असेसिंग ऑफिसर ने आपको 2 करोड़ का असेसमेंट किया है, तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको 50% की टैक्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी। इट मीन्स 90% आपका टैक्स हो जाएगा, 60% तो ओरिजिनल पे आपने भरा, 30% आपका पेनल्टी का। और अदर पेनल्टी से इम्यूनिटी दी है उन्होंने 271 AA-B, AA-D, 271D, 271DA, 271E और प्रोवाइजो दिया है उन्होंने उसमें सेक्शन में कि आपने यदि सही ब्लॉक का रिटर्न नहीं भरा है और सही इनकम नहीं दिखाई है तो ये जो पेनल्टी के जो प्रोविजन है ये आपको अदर जो एडिशन है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। That's all from my side. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mahesh sir. It was very informative session. So we have received a few questions. Just allow me a minute. The first question is, what is the impact of GST if shortage of stock or excess of stock is found while search of income tax? And secondly, whether income tax authority asks a consultant to go out from that place whenever such critical situation panic they created with the client. So your answer on that. So far the GST department is concerned, nowadays there is some internal they have a setup that they have to share the information, but
95% cases they do not share the information because they are only concerned with the collection of taxes there, income tax collection, and otherwise the implications are there. If they write to the GST department, then implications are there. Because vice versa, the GST department also informing income tax people. Correct. So that you need to solve these problem according to GST Act actually. That I cannot comment at this juncture what happened to the GST and how we handle all these things with the GST department. And the next one, the presence of council you are asking, na? I Now, think what is your second question? second question is whether income tax authority asks consultant to go out from that place. Where? In which? Yeah. In the search direction? Yes, Yes, they can say. they can say. Okay. We should not go actually, we should avoid while the proceeding of search is going on, we should avoid going there basically. We Okay. should avoid going there. I have already addressed this issue that Correct. presence of council is not allowed. Correct. So second question is within how many days from notice block assessment required to file? Any software suggested to file block assessment? 60 days, they specifically mentioned the days actually in the notice itself. Okay, and any software if you can suggest? The return form has already come actually. They Okay. can see the return actually through portal, utility portal. Okay. So next question is, can investigation wing send someone to any SSC located in another state which does not come under his jurisdiction? So I already told about the 500 kilometer is the distance that he has to give airfare to that assessee. Okay. So you can write to him, bole, kindly give us the airfare, we will come. Will come. And Okay. also give the airfare of the council also. Okay, then generally a survey party cut off all cameras and its recording. Under which section survey party entitled to do so that? No, this is not permissible in the Not- act. Yes, because They can camera should be write- on. Yeah, they can write to their administrative authority. Correct. And can the SSC request to investigation officer for a copy of appraisal report? No, it's an internal and confidential document. Okay. Circular regarding non-seizure of gold in case of married female or male and others are beside the jewelry shown in their balance sheet or in the total including shown in the balance sheet. I think it's a total. No, if somebody shown in the balance sheet, so they will follow balance sheet first actually. The circular will be applicable in case of there is no amount or the weight shown in the balance sheet actually. Yes. Okay. So WhatsApp message can be legal evidence found during search? I have already given in my slide actually the Supreme Court is not accepting WhatsApp images as evidence, primary evidences. Is the authorized officer empowered to seize the locker documents also? Which document? Whatever documents they have collected. So is the He will verify. He will verify first if he find locker. any registered sale deed and etc. FDR. He will. There is a internal circular that not to seize the disclosed assets. Only he will seize the undisclosed assets. If Okay, the so property is undisclosed, FDR is undisclosed, he can seize. But disclosed assets he will not seize. so whether if they are kept into the locker, then also
They then can- it is good. It is good. It will be better for the assessee that he can show later on to the other officer, na DDITs and all that actually. Okay. So that's all. No more question. So I think, sir, it's a fantastic session taken by you. Very crisp, very clear, and I'm sure with the vast knowledge which you have, our participants must be benefited from your deep understanding. So thank you so much for joining us today and accepting this invitation and sharing your knowledge with all of us. Thank you. Thank you so much, and all the participants who joined us from across the country. Okay. And of course, your presence and active involvement make such sessions worthwhile. So keep connected with all of us. Let's continue to stay curious, stay connected, and stay committed to lifelong learning. With this, thank you so much. So we can close this session, Namrita, right? Yes, please. Thank you. Recording stopped.